دیکھو، تمہیں بابا نے میرا باڈی گارڈ بنایا ہے، میرا شوہر نہیں، اس لیے تم وہی کرو گے جو میں کہوں گی۔ چلو سامان اٹھاؤ میرا۔ پریشا نے اپنے سامنے رکھے ڈیرو شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کرتے انتہائی نخوت سے کہا، اور اپنے ماتھے پر آئی لٹ کو جھٹک کر سامنے کھڑے شہاب کو گورا۔ وہ مال کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور اس کا غصہ دیتی تھا۔ باڈی گارڈ ہوں محترمہ، نوکر نہیں۔ شہاب نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے انتہائی سکون سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش اور شرارتی سی مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ پریشا کے تن بدن میں آگ لگا دیتی تھی۔ پریشا نے گھوم کر اس کی باڈی بلڈر جسامت، چوڑے کندھوں اور بازوں کی ابری ہوئی مچھلیوں کو دیکھا، جو ایک پل کے لیے اس کی نظریں وہیں ٹھہر گئی، مگر فوراً ہی اپنی ارا کو آرے لاتے اس نے پیر زمین پہ پٹکا۔ تمہیں تنخواہ کس بات کی ملتی ہے؟ میں افتخار صاحب کی بیٹی ہوں اور تم میرے تنخواہ دار ملازم، اس لیے چپ چاپ یہ بیگ اٹھاؤ، ورنہ میں ابھی بابا کو کال کر کے تمہاری نوکری سے تمہیں نکلوا دوں گی۔ پریشا نے اپنا فون نکالتے اسے دھمکی دی۔ شہاب نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا لمبا قد اور رونقدار شخصیت پریشا پر حاوی ہو رہی تھی۔ تنخواہ آپ کی جان کی حفاظت کی ملتی ہے، ان مہنگے کپڑوں اور جوتوں کی چوکراداری کرنے کی نہیں۔ اور رہی بات نوکری سے نکالنے کی، تو آپ بے شک کبھی کال ملا دیں، میں خود سر کو بتا دوں گا کہ آپ کی بیٹی مجھ سے کلیوں والے کام کروا رہی ہے۔ شہاب نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا اور پھر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ پریشا نے دانت پیسے اور بیگ کو غصے سے خود ہی اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ اتنے زیادہ بھاری تھے کہ اس کے نازک ہاتھوں سے پھسل کر زمین پر گرنے لگے تھے۔ شہاب کو اس کی اس معصومیت اور بنے پر ہنسی آ گئی، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکی اوپر سے جتنی ہی کڑوی اور مغرور بنے اور اس کی کوشش بھی کرے، اندر سے اتنی ہی معصوم اور دل کی صاف ہے۔ پریشا بڑبڑاتی ہوئی بیگ گھسیٹ رہی تھی اور شہاب بس ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی پریشا نے بیگ لاؤنج میں پھینک کے اور سیدھا ڈائننگ ٹیبل کی طرف گئی، جہاں افتخار صاحب اور ان کی والدہ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بابا، میں آج ہی اس بدتمیز انسان کو فائر کر رہی ہوں، مجھے یہ اپنے سائے کے آس پاس بھی نہیں چاہیے۔ پریشا نے کرسی کھینچتے غصے سے کہا۔ افتخار صاحب جو شہر کے نامور سیاستدان اور ارب پتی بزنس مین تھے، انہوں نے مسکرا کر اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کو دیکھا۔ اب کیا کر دیا شہاب نے میری شہزادی کے ساتھ؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ کیا نہیں کیا بابا، میں نے اس سے کہا کہ میرے شاپنگ بیگ پاری تک ہی پہنچا دے، تو آگے سے مجھے لیکچر دینے لگا کہ میں باڈی گارڈ ہوں، نوکر نہیں ہوں تمہارا۔ بابا، آپ کو پتہ ہے مال میں کتنے لوگ تھے، اس سے سب کے سامنے میری بے عزتی کی ہے۔ پریشا نے منہ بسورتے ہوئے اپنی والدہ کی طرف دیکھا جو کہ اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ پریشا بیٹا، صاحب ٹھیک ہی تو کہتا ہے، اس کا کام تمہاری حفاظت کرنا ہے، اب خود بھی تو تھوڑا بہت کام کر لیا کرو نا، اب اتنی بھی کمزور نہیں ہے میری لاڈلی۔ اس کی والدہ نے اسے سمجھاتے ہوئے چائے کا کپ اس کے آگے کیا۔ ماما، آپ بھی اس کے سائڈ لے رہی ہیں؟ بابا، آپ نے اسے کیوں رکھا ہے؟ میں اکیلی جا سکتی ہوں ہر جگہ، مجھے کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشا نے چائے کا کپ پرے دھکیلتے ہوئے ضد کی۔ افتخار صاحب نے سنجیدگی سے پریشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولے، میری جان، تم جانتی ہو کہ میرے کتنے دشمن ہیں، میری جان کو خطرہ ہو نہ ہو لیکن تمہاری جان میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ تم میری اکلوتی بیٹی ہو اور میں تمہاری حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ شہاب ایک انتہائی قابل اور ٹرینڈ باڈی گارڈ ہے، وہ ہر وقت تمہارے سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہے گا تاکہ تم محفوظ رہو۔ تم بلا روک ٹوک اپنی آؤٹنگ کرو، جہاں مرضی جاؤ، لیکن شہاب تمہارے ساتھ جائے گا۔ پریشا نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ افتخار صاحب اس معاملے میں اس کی ایک نہیں سنیں گے، لیکن بابا، یہ ہر وقت مجھ پر مسکراتا رہتا ہے، مجھے اس کی وہ مسکراہٹ بالکل زہر لگتی ہے، تو کیا تم چاہتی ہو کہ وہ ہر وقت روتا رہے؟ افتخار صاحب نے کہکا لگایا اور وہاں کھڑے شہاب کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ شہاب نے بھی سر جھکا کر ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ پریشا غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شہاب کا سر پھاڑ دے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شہاب کے ہوتے اسے واقعی کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ اگلی صبح پریشا یونیورسٹی پہنچی۔ افتخار صاحب کی بیٹی ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی میں ویسے اس کے دوستوں کی گنتی نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ اس کا رویہ کافی اکھڑ تھا اور کوئی بھی اس کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھ پاتا تھا۔
वो क्लास में फ्री होकर कैफेटेरिया की तरफ जा रही थी, जबकि शहाब हस्मे मामूल उससे चंद कदम के फासले पर पीछे पीछे चल रहा था। अचानक कॉरिडोर में खड़े कुछ मनचले लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे वाह, आज तो मैडम की तेवर ही कुछ और है। क्या बात है परीक्षे, आज अकेली कैसे घूम रही हो? एक लड़के ने आगे बढ़कर तंजिया अंदाज में कहा, और बाकी लड़के लड़के भी हंसने लगे। परीक्षे की आंखों में गुस्से की चंगारियां भड़क उठी। ये रास्ता छोड़ो मेरा, वरना मैं तुम्हारी वो दुर्गत बनाऊंगी ना कि तुम याद रखोगे। उसने तंग कर कहा और आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर एक और लड़के ने हाथ बढ़ाकर उसका रास्ता रोका। अरे, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता मोहतरमा। थोड़ी देर हमारे साथ बैठकर कॉफी ही पी लो, तुम्हारा क्या घिस जाएगा? लड़की ने इंतहाई बदतमीजी से कहा और परीक्षे का बाजू पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, और इससे पहले कि लड़के का हाथ परीक्षे तक पहुंचता, पीछे से एक आईनी हाथ ने उस लड़के की कलाई इतनी जोर से दबोची कि लड़के के मुंह से चीख निकल गई। परीक्षा ने घबरा कर मुड़कर देखा तो शाह वहां खड़ा था। उसकी आंखों में इस वक्त ऐसा खतरनाक तूफान था कि परीक्षा भी एक पल के लिए डर गई। शाहब ने उस लड़के का कॉलर पकड़ा और उसे एक झटके से दीवार के साथ दे मारा। अगर आइंदा इसके साय के करीब भी भटकने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे ये हाथ तुम्हारे जिस्म के साथ नहीं रहेंगे, समझ आई? शाहब के बारी और गजबनाक आवाज कॉरिडोर में गूंजी। वो लड़का खौफ से कांपने लगा और बाकी लड़कों की तो जैसे जान ही निकल गई थी। शहाब की जिसामत और उसके रोब के सामने वो सब चूहों की तरह लग रहे थे। भाई हमें माफ कर दो, हम तो मजाक कर रहे थे। एक लड़के ने डरते डरते कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि पूरी यूनिवर्सिटी तुम्हारा मजाक बना रही हो। साहब ने दहाड़ते हुए कहा। तो सब लड़के वहां से गुजरते भाग गए और परीक्षे वहीं बुत बनी खड़ी थी। उससे पहली बार शहाब का ये रूप देखा था। वो जितना पुरसुकून नजर आता था, गुस्से में उतना ही जालिम लग रहा था। शहाब ने अपने कपड़े दुरुस्त किए और परीक्षे की तरफ मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर वही पुरानी और दिलकश सी मुस्कुराहट वापस आ चुकी थी। चले मैडम, या अभी और किसी की हड्डियां तुड़वानी है? परीक्षा ने जल्दी से नजरें चुराई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि शहाब भी सुन लेगा। मैं खुद ही निबट सकती हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी सहमी हुई आवाज को छुपाने के लिए दोबारा न खुद का लबादा ओढ़ दिया था। जानती हैं, आप अकेली पूरी फौज को मार सकती हैं, लेकिन मैंने अपने हलाल के पैसे भी तो पूरे करने हैं ना। चले, आप कैफेटेरिया में चलकर कॉफी पीते हैं, मुझे भूख भी लग रही है। शहाब ने आराम से कहा और आगे चल पड़ा। परीक्षा उसकी चोरी पुष्ट को देखती रही। अंदर ही अंदर उसे शहाब का ये अंदाज बहुत अच्छा लगा था। वो लड़कियां जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, वो शहाब की शख्सियत और उसको हीरो वाले अंदाज पर फिदा हो रही थी। परीक्षा को उन लड़कियों को शहाब को घूरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्से से पांव पटका और तेजी से चलती शहाब के बराबर आ गई। शाम के वक्त परीक्षा एक बार फिर शहाब को लिए मार्केट की तरफ निकल गई। वो जानबूझकर ऐसी जगहों पर जाती थी जहां शहाब को तंगी मार्केट में जाते हुए परीक्षा पर हर दुकान के बाहर रुकती और फजूल की चीजों को देखना शुरू कर देती, सिर्फ शहाब का सब्र आजमाने के लिए। ये सूट कैसा है? परीक्षा ने एक दुकान के बाहर टंकी इंतहाई चमकीले और अजीब से रंग वाले सूट की तरफ इशारा किया और पूछा, बिल्कुल वैसा जैसा आपका मिजाज है, तेज और आंखों को चुभने वाला। साहब ने हाथ बांधे खड़े खड़े जवाब दिया। परीक्षा ने गुस्से से उसे घूरा, तुम्हारी तो कोई चॉइस ही नहीं है। पता नहीं बाबा ने तुम्हें क्या देख कर तुम्हें रख लिया है। आपके बाबा ने मुझ में वो देखा है जो आपको नजर नहीं आ रहा, और वो है मेरी काबिलियत और सब्र। और आप जैसी जिद्दी लड़की को बर्दाश्त करने के लिए वो बहुत जरूरी है। शहाब के हाजिर जवाबी ने परीक्षा को मजीद दबा दिया। पैर पटकती आगे बढ़ गई, लेकिन सच्ची बात तो ये थी कि वो अंदर ही अंदर शहाब की बातों को एंजॉय करने लगी थी। उसे शहाब का एटीट्यूड जहर लगता था, लेकिन उसकी मौजूदगी उसे एक अजीब सा तहफ्फुज भी देती थी। उसे नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी, मगर जब भी शहाब उसे वो मखसूस शरारती मुस्कुराहट देता तो परीक्षा के दिल में कुछ कुछ होने लगता था। वो मार्केट की भीड़ में चल रही थी कि अचानक एक मोटरसाइकिल सवार तेजी से उनके करीब से गुजरा। परीक्षा का तवाजुन बिगड़ा और वो गिरने ही वाली थी कि शहाब ने तेजी से आगे बढ़कर उसे मजबूत बाहों में अपने थाम लिया। परीक्षा के दोनों हाथ शहाब के सीने पर थे और शहाब की गहरी आंखें सीधी परीक्षा की आंखों में दिख रही थी। उसी वक्त मार्केट का शोर, लोगों की आवाजें, सब कुछ जैसे गायब हो गया।
परीशा को सिर्फ शहाब की धड़कन महसूस हो रही थी, जो बिल्कुल उसके हाथों के नीचे धड़क रहा था। ध्यान से मैडम, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं सर को क्या जवाब दूंगा? शहाब की आवाज में फिक्र थी, जिसको जलाने वाले अंदाज से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। परीशा ने घबरा कर उससे खुद को अलग किया और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। वो बस अचानक उसके गाल शर्म से सुर्ख हो रहे थे और वो नजरें चुराने लगी। चल, अब घर चलते हैं, वैसे भी मगरिब होने वाली है और सर परेशान हो रहे होंगे। शहाब ने नरमी से कहा और उसे गाड़ी की तरफ ले गया। गाड़ी में बैठते ही परीशा ने चोरी छुपे शहाब की तरफ देखा, जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। उससे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान जितना सख्त नजर आता है, अंदर से उतना ही नरम और ख्याल रखने वाला है। उसके माँ बाप उससे टूट कर प्यार करते थे और अब शहाब भी एक साय की तरह उसकी हर चीज का ख्याल रख रहा था। परीशा हंसमुख सी लड़की थी, जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने वाली, और उसकी जिंदगी इतनी ही खूबसूरत थी, बिल्कुल किसी ख्वाब की तरह, जहाँ हर कोई इसके नाज उठाने के लिए हाजिर था। अगली शाम मेंशन में एक अलग ही चहल पहल थी। परीशा अपने करीबी दोस्त फरा की सालगिरह में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का एक बेहद खूबसूरत और कीमती लिबास पहना हुआ था, जिस पर नफीस काम किया गया था। बालों को खूबसूरती से सेट किए हल्के मेकअप में वो बेहद दिलकश लग रही थी। वो आईने के सामने खड़ी अपना आखिरी जायजा ले रही थी, जब उसके चेहरे पर एक मगरूर सी मुस्कुराहट उभरी। उसे मालूम था कि आज पार्टी में सबकी नजरें उस पर होंगी। वो अपना छोटा सा पर्स उठाए, हाई हील्स पहनकर टक टक करती सीढ़ियों से नीचे उतरी। शहाब लाउंज में ही सोफे पर बैठा अपने फोन पर कुछ देख रहा था। कदमों की आहट सुनकर उसने सर उठाया, फिर जैसे एक पल के लिए वक्त वहीं थम गया। परीशा को इतने एहतमाम से तैयार देखकर शहाब की नजरें जैसे उसके चेहरे पर ठहर सी गई। उसकी गहरी आंखों में वाजिया पसंदगी और ख्वाहिश थी, जो वो छुपा नहीं पाया। परीशा ने उसकी ये नजरें महसूस की तो उसकी दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए बेतरतीब हुई, मगर उसने फौरन अपने मखसूस अंदाज को अपनाते हुए कहा, ऐसा क्या घूर रहे हैं? कभी किसी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा क्या? परीशा ने अपनी हील्स की आवाज को नमाया करते उसके करीब आकर तंजिया अंदाज में पूछा। शहाब ने जल्दी से नजरें चुराई और गला खनकारते हुए खड़ा हो गया। वो अपने ब्लैक सूट में हमेशा की तरह इंतहाई वजीहा और रूपधार लग रहा था। देख रहा हूँ कि इतना तैयार होने के बाद भी लड़कियां प्यारी क्यों नहीं लगती हैं? शहाब ने अपनी मखसूस शरारती मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और कार की चाबियां हवा में उछाली। परीशा ने होंठ सुकेरे और गुस्से में उसे देखा। "हम्म, तुम जैसा बदसूख इंसान क्या जाने खूबसूरती की डेफिनेशन। चलो, अब मुझे देर हो रही है।" वो पैर पटकती हुई बाहर की जानिब चल पड़ी, मगर अंदर ही अंदर शहाब की तारीफी नजरें से एक अनजानी सी खुशी महसूस कर रही थी। पार्टी में परीशा ने अपनी दोस्तों के साथ बहुत वक्त गुजारा और हंसती मुस्कुराती रही, जबकि शहाब कुछ फासले पर खड़ा एक मुस्तैद बॉडीगार्ड की तरह चारों तरफ कड़ी नजरों से देख रहा था। रात काफी गुजर चुकी थी जब पार्टी अपने इख्तिताम को पहुंची। सड़कें सुनसान थी, रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी। परीशा पिछली सीट पर बैठी अपने फोन पर तस्वीर देख रही थी और गुनगुना रही थी। अचानक उनकी गाड़ी की पिछली दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आ गई थी। शहाब ने रियर व्यू मिरर में अब मोटरसाइकिलों को देखा, तो उसके माथे पर शक्लें पड़ गई। उसका तजर्बा उसे किसी बड़े खतरे से आगाह कर रहा था। उसने फौरन गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। क्या हुआ? इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? परीशा ने घबरा कर फोन से नजरें हटाई और आगे की तरफ झुक कर पूछा। परीशा नीचे झुक जाए, फौरन सीट के नीचे छुप जाए। शहाब की दहाड़ती आवाज गूंजी और इसीलिए में एक जोरदार धमाके से उनकी गाड़ी का पिछला शीशा गोलियों की बौछार से चकनाचूर हो गया। परीशा के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसने अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर खुद को सीट के दरमियान गिरा लिया। उसका पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। शहाब ने एक हाथ से स्ट्रिंग व्हील को सख्ती से थामा हुआ था और दूसरे हाथ से अपनी गन निकालकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी। हमलावर चारों तरफ से उनकी गाड़ी को निशाना बना रहे थे। साहब, ये कौन लोग हैं? मुझे डर लग रहा है। बाबा को कॉल करो प्लीज। परेशान होते हुए चिल्ला रही थी। उसकी सिसकियां गाड़ी के अंदर गूंज रही थी। मैं हूं ना परेशान, आप बस सर नीचे रखें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। साहब ने इंतहाई मजबूत और पुरसुकून लहजे में कहा, हालांकि सूरत हाल बेहद खराब थी। अचानक एक मोटरसाइकिल सवार ने बिल्कुल उनके बराबर आकर फायर किया। गोली साहब की खिड़की का शीशा तोड़ती सीधी उसके दाएं कंधे को चीरती निकल गई। साहब के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली
मगर उसने स्ट्रिंग पर अपनी गिरफ्त ढीली नहीं पड़ने दी थी। फोन तेजी से बहकर उसकी शर्ट को सुर्ख करने लगा था। उसने गाड़ी को एक जोरदार झटका दिया और मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारते गाड़ी को पूरी रफ्तार से मेंशन की तरफ भगा दिया। हमलावर उनकी इस जवाबी कार्रवाई से घबराकर पीछे हट गए थे। साहब, तुम्हारे कंधे से खून निकल रहा है, तुम्हें गोली लगी है। परीशा ने डरते डरते सर उठाकर देखा तो साहब का खून से लथपथ बाजू देखकर उसकी जान ही निकल गई। वो जोर जोर से रोने लगी। मैं ठीक हूँ, आप महफूज है ना? आपको तो कहीं चोट नहीं लगी? साहब ने दर्द के बावजूद अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की कोशिश की, मगर उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। परीशा ने नफी में सर हिलाया। उसकी आंखों में मुसलसल आंसू बह रहे थे। गाड़ी तेज रफ्तारी से बड़े गेट से अंदर दाखिल हुई और एक जोरदार ब्रेक के साथ पोर्च में रुकी। साहब ने सुख का सांस लिया कि परीशा कम से कम महफूज है, मगर अंदर का मंजर देखकर उसके भी आसान खता हो गए। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, मुलाजमीन रो रहे थे। परीशा गाड़ी का दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकली। ये सब क्या हो रहा है? उसके कदमों से जैसे जान निकलती जा रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुई तो मेंशन के पुराने वफादार मुलाजिम बाबा रहमत ने रोते हुए आगे बढ़कर उसे रोका। बेटी, साहिब और बेगम साहब की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो दोनों हमें छोड़ गए। बाबा रहमत की हिचकियां बंद हो गई। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता, लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। परीशा गुस्से से चिल्लाई। उसकी आवाज पूरे लाउंज में गूंजी। वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसके वो माँ बाप जो चंद घंटे पहले इससे प्यार करके गए थे अब दुनिया में नहीं रहे। वो तेजी से लाउंज के बीचों बीच रखे उन दो वजूदों की तरफ बढ़ी जिन पर सफेद चादरें तनी हुई थी। देखे देखे साहब, ये लोग क्या कह रहे हैं? आप इन लोगों को पहचानते हैं? गलती हुई है, कोई और है, ये मामा बाबा नहीं है, नहीं हो सकते। वो उसने एक चादर को खींचा। सामने इफ्तिखार साहिब का खून आलूद और बेजान चेहरा था। उसने जल्दी से दूसरी चादर हटाई तो उसकी माँ भी इसी तरह खामोश सो रही थी। बाबा, उठे ना, देखिए ना, मैं आ गई हूँ। मामा, आप तो कह रही थी कि कल हम शॉपिंग पर जाएंगे, आप दोनों ऐसे क्यों सो रहे हैं? उठे प्लीज, मुझे डर लग रहा है, बाहर मुझ पर भी किसी ने हमला किया था। बाबा उठे ना, साहब को भी गोली लगी है। बाबा, मेरी बात सुने। परीशा उनके सीने पर सर रखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसकी वो चीखें इस कदर दिलखराश थी कि वहां खड़े हाई इंसान का दिल फट रहा था और वो रोती जा रही थी और उन्हें झिंझोर रही थी। साहब का अपना कंधा खून से तर था, दर्द से उसका बुरा हाल था, मगर परीशा की हालत देखकर वो अपने सारे जख्म भूल गया। वो खामोशी से आगे बढ़ा और परीशा के पास घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। परीशा ने पलटकर साहब को देखा और उसके गले लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। साहब, ये झूठ है ना? मेरे बाबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम इनसे कहो ना कि उठ जाए। साहब, मुझे ये अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो हिचकियों के दरमियान बोलते हुए ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। मैं हूं ना परीशा, आप अकेली नहीं है। जब तक मेरी जान में जान है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपके बाबा मुझे आपकी हिफाजत के लिए तो रखा था और मैं अपनी आखिरी सांस तक ये फर्ज निभाऊंगा। आप हौसला रखें। साहब की अपनी आंखों से आंसू बह रहे थे। इफ्तिखार साहिब ने हमेशा उसे इज्जत दी थी और आज उनकी अचानक मौत ने साहब को जैसे अंदर से तोड़ दिया था। साहब कुछ देर बाद उसके पास से उठकर इंतजामात देखने के लिए चला गया और वो वहीं पत्थर का बुत बने खामोशी से आंसू बहाई जा रही थी। ताजियत करने वालों का तांता बन चुका था। परीशा के वो तमाम रिश्तेदार जिन्हें इफ्तिखार साहब उनकी लालची फितरत की वजह से हवेली में घुसने तक नहीं देते थे, खबर मिलते ही वो मक्खियों की तरह मंडलाते हुए पहुंच चुके थे। उसकी पुप्पो, खाला, रिश्ते के चचा, बिमा, अपनी फैमिली हवेली में डेरे डाल चुके थे। हाय, मेरा जवान भाई चला गया, मैं तो लुट गई, मेरा तो घर ही टूट गया। पुप्पो लाउंज में दाखिल होते बैल डालने लगी। वो सीधा इफ्तिखार साहब की लाश पर गिरी और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। खाला ने भी दूसरी तरफ से मोर्चा संभाला। शाह पे कोने में खड़ा उन सबके रंग ढंग देख रहा था। उसे इन सब में से किसी की भी आंखों में सच्चा दुख नजर नहीं आ रहा था। बाबा, रहमते ने जबरदस्ती शाहब को अस्पताल भेजा। बेटा, तुम जाकर पट्टी करवा लो, तुम्हारे जख्म से बहुत खून बह गया है। तुम ठीक हो गए तो उस बच्ची का ख्याल रख सकोगे ना? ये तो वैसे ही सदमे से आदी हो गई है। साहब ना चाहते हुए अस्पताल चला गया। तकलीफ की घड़ी के 2 दिन गुजर चुके थे। तदफीन
اور کل خانے کے بعد گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ دھیرے دھیرے سب پورے مینشن پر قابض ہونے لگے۔ ہر کمرے پر کسی کسی نے اپنا حق جما لیا تھا اور اس قیمتی مینشن کو اپنا ذاتی گھر سمجھ کر ہر جگہ ایسے پھر رہے تھے جیسے صدیوں سے ہی رہتے ہوں۔ دیکھو نگہت، میں اس گھر کی بڑی ہوں، افتخار میرا بھائی تھا، اس لیے افتخار کا وہ ماسٹر بیڈ روم اب میرا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ نیچے والا گیسٹ روم لے لوں۔ پوپو نے لاؤنج کے صوفے پر انتہائی رونیت سے بیٹھتے ہوئے اپنی بہن سے کہا، یہ کیا بات ہوئی آپ؟ افتخار صاحب جتنی آپ کے بھائی تھے نا، زبیدہ کے بھی تو کچھ لگتے تھے نا، اور زبیدہ میری سگی بہن تھی، اس حساب سے تو میرا بھی اس گھر میں برابر کا حق ہے۔ میں کوئی گیسٹ روم میں نہیں رہوں گی، میرا وہ اوپر والا کمرہ ہے۔ خالہ نے بھی ہاتھ نچا کر جواب دیا اور دونوں میں بحث چھڑ چکی تھی۔ اور دوسری طرف چاچا کی بیوی تو نہیں آئی تھی، مگر ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پورے مینشن میں اودم مچا رہے تھے۔ چچا زاد بیٹا حویلی کی قیمتی شو پیسوں کو ہاتھ لگا لگا کر دکھ رہا تھا۔ یار کمال کر دیا افتخار چاچا، تو کیا زبردست چیزیں اکٹھی کی ہیں۔ اب تو یہ سب اپنا ہی ہے نا، کل ہی اپنے دوستوں کو یہاں بلا کر پارٹی کرتا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ایک مہنگا کرسٹل کا گلاس ہوا میں اچھالتے اپنی بہن سے کہا، تم بس پارٹی کرو گے، یہی خواب دیکھنا۔ مجھے باہر اتنی بڑی گاڑیاں کھڑی نا، ان کا سوچو، انہیں اپنے نام کیسے کروانا ہے، ہمیں بھی اپنا حصہ لینا ہے۔ اس کی بہن نے اسے آنکھیں دکھاتے تنبیہ کی۔ پریشے جو کبھی پورے گھر میں چہکتی پھرتی تھی، جس کی ہنسی سے حویلی گونجتی تھی، وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ کر یہ سب تماشے سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے اور چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ وہ ان اپنوں کے روپ میں چھپے بیگانوں کو دیکھ کر شدید خوفزدہ تھی۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن میں جانے لگی۔ حال میں پپو کی کرخت آواز گونجی، یہ کیا پکایا تم نے؟ میں نے تمہیں آج قورمہ بنانے کو کہا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ اس گھر کی مالکن میں ہوں اور سارا انتظام میں چلاؤں گی۔ پپو ملازم پر اپنا روب جھاڑتے ہوئے چلائے، بی بی جی وہ چھوٹی بیگم صاحبہ کو یہ سبزی پسند ہے، انہوں نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا تو سوچا شاید دیکھ کر کچھ کھا لے۔ ملازم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، پریشے کو پسند ہے تو وہ خود بنا کر کھا لے گی جب بھوک لگے گی، کوئی شہزادی نہیں ہے وہ اب جو اس کے نخرے اٹھائے جائے۔ پپو نے سختی سے اسے ڈانٹا اور صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پریشے کچن کے دروازے پر ہی رک گئی، اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ بنا کچھ کہے دبے قدموں واپس اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ ان سب کے سامنے جاتے اس کے ہونٹ سل جاتے تھے۔ وہ بات بھی ٹھیک نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی کہ یہ لوگ اسے نوچ کھائیں گے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر گر کر سسکیاں لینے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا تاکہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ اپنے ہی گھر میں آج وہ تنہا اور بے یار و مددگار تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ جب دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھلا، پریشے نے آہستہ سے چہرہ تکیے سے اٹھایا۔ دروازے پر شہاب کھڑا تھا۔ اس کے کندھے پر تازہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ سب انتظامات پوری ایمانداری سے نبھانے کے بعد وہ سیدھا اپنی ڈیوٹی پر حاضر تھا۔ آپ نے کچھ کھایا نہیں پریشے؟ شہاب کی بھاری مگر نرم آواز کمرے میں گونجی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، تم کیوں آئے ہو یہاں؟ جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ پریشا نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میں آپ کو اکیلا چھوڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ یہ بتانے آیا ہوں کہ باہر بیٹھے ان کھوکھلے رشتوں کو اپنی کمزوری مت دکھائیں، وہ آپ کے آنسوں سے اور زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں۔ شہاب چند قدم آگے بڑھا اور اس کے بیڈ کے قریب آ کر رکا۔ میں کیا کروں شہاب، وہ میرے گھر پر قبضہ کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے میرے ہی گھر میں اجنبی کر دیا ہے۔ پریشا نے بے بسی سے بولا اور اس کی ہچکیاں پھر سے بن گئی۔ آپ فکر نہ کریں، یہ سب زیادہ دن نہیں چلے گا، میں سب دیکھ رہا ہوں، صحیح موقع کا منتظر۔ آپ بس مجھ پر یقین رکھیں اور خود کو مضبوط کریں۔ شہاب اسے تسلی دے کر کمرے سے باہر نکل گیا اور معمول کے مطابق مینشن کے گارڈن میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی عقابی نظریں گھر کے ہر فرد پر تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ پپو سعیدہ اور خالہ نگہت نے مینشن کو پوری طرح سے اپنی جاگیر سمجھ لیا تھا۔ افتخار صاحب کے ماسٹر بیڈ روم میں سعیدہ پپو کا راج تھا، جبکہ نگہت، خالہ اور ان کے بچے ہر قریبی چیز کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دوپہر مینشن کے بڑے ڈرائنگ روم میں ایک خفیہ بیٹھک لگائی گئی۔ سعیدہ پپو، نگہت خالہ اور چچا زاد فیضان صوفے پر برا جمان تھے۔ ان کے سامنے افتخار صاحب کے خاندانی وکیل جمیل صاحب بھی بیٹھے تھے۔ وکیل صاحب، آپ سیدھی طرح بتائیں کہ افتخار کی جائیداد کا کیا حساب ہے؟
ہم اس کے وارث ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جائیداد شرعی لحاظ سے ہمارے درمیان تقسیم کر دی جائے۔ سعیدہ پھپھو نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے حاکمانہ انداز میں کہا۔ جمیل صاحب نے اپنی فائل کھولی۔ سعیدہ بیگم، افتخار صاحب کی جائیداد کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں ہے۔ ان کی 2 شوگر ملز، شہر کے باہر 4 فارم ہاؤسز، کئی کمرشل پلاٹس اور بینک بیلنس ملا کر یہ جائیداد 500 کروڑ سے بھی اوپر بنتی ہے۔ 500 کروڑ؟ فیضان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نگہت خالہ کے منہ سے تو رال ہی ٹپکنے لگی تھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ نکالے کاغذات اور کرے ہمارے نام۔ نگہت خالہ نے بے صبری سے کہا۔ وکیل نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے بیگم صاحبہ۔ افتخار صاحب اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد، یہ مینشن، یہ بینک کے تمام اکاؤنٹس اپنی اکلوتی بیٹی پریشی افتخار کے نام ہی کر چکے ہیں۔ قانونی طور پر آپ سب کیا اس جائیداد میں ایک دھکے کا بھی، ایک دھیلے کا بھی حصہ نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ سب کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ کیا یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ اس کے نام؟ یہ نہیں ہو سکتا، آخر ہمارا بھی تو خون کا رشتہ ہے۔ سعیدہ پھپھو خوف غصے سے کھڑی ہو گئی۔ قانون یہی کہتا ہے کہ جب تک پریشے خود اپنے ہوش و حواس میں یہ جائیداد آپ کے نامن ٹرانسفر نہیں کرتی، آپ لوگ اس مینشن کا ایک دن کا بھی نہیں بیچ سکتے۔ وکیل یہ کہہ کر فائل اٹھا کر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد سعیدہ پھپھو کے چہرے پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے صوفے پہ بیٹھ کر ہاتھ ملے۔ کوئی بات نہیں، پریشے سے سائن کروانا کون سا مشکل کام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس سے ذرا سا دھمکا کر سائن کروا بھی لیے تو کل کو وہ کسی کو بھی پاس جا کر ہمارے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس کا کوئی پکا بندوبست کرنا ہوگا۔ کیسا بندوبست آپا؟ مار دے کیا اسے؟ فیضان نے بے وقوفوں کی طرح پوچھا۔ عقل کے اندھے، اگر وہ مر گئی تو جائیداد حکومت کے کھاتے میں چلی جائے گی کیونکہ وہ لاوارث کہلائے گی۔ ہمیں کسی طرح پریشے کو کسی ایسے غریب اور کنگلے انسان سے بیاہ کر رخصت کرنا ہوگا جس کی نہ کوئی پہچان ہے اور نہ کوئی اوقات، تاکہ کل کو وہ افتخار کی بیٹی بن کر کوئی کلیم نہ کر سکے اور اس کی جاتی ساری جائیداد ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ پھپھو نے اپنی بیانت سازش ان کے سامنے رکھی۔ آئیڈیا تو بہت زبردست ہے با، لیکن ایسا غریب اور لاوارث لڑکا ملے گا کہاں سے؟ نگہت خالہ نے پریشانی سے پوچھا۔ اسی دوران فیضان کی نظر کھڑکی سے باہر گارڈن میں بیٹھے شہاب پر پڑی۔ ارے پھپھو، خالہ، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو 24 گھنٹے باہر گارڈن میں بیٹھا رہتا ہے، اس کا باڈی گارڈ اسی سے بیاہ دیتے ہیں۔ سعیدہ پھپھو تھیڑی سے کھڑکی کی طرف آئی اور شہاب کو غور سے دکھا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے فیضان، کون سا وہ امیر ہوگا؟ کنگلا ہی ہوگا نا، باڈی گارڈ ہی تو ہے، اس کا کیا پتا دولت اور جائیداد کیا ہوتی ہے۔ ہم اسے تھوڑے سے پیسوں کا لالچ دیں گے، وہ تو بھاگ کر اس لڑکی کو اپنے گلے باندھ دے گا۔ سب نے باہمی مشورے پر اتفاق کیا اور فخر سے مسکرانے لگے۔ ان کے خیال میں انہوں نے دنیا کی سب سے زبردست چال چلی تھی۔ اسی شام شہاب کو ڈرائنگ روم میں بلوایا گیا۔ وہ حسب معمول اپنے سیاہ لباس میں ملبوس، چہرے پر پرسکون تاثر لیے اندر داخل ہوا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو شہاب، تم افتخار کے بہت وفادار رہے ہو اور اب افتخار تو رہا نہیں، ہر پریشہ بالکل اکیلی ہو گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری اب تم اٹھا لو۔ ہم پریشے کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ سعیدہ پھپھو نے انتہائی مکاری سے ہمدردی کا ناٹک کرتے ہوئے کہا۔ شہاب کی گہری آنکھوں میں ایک چمک ابھری، مگر اس نے فوراً سے نظریں جھکا دی۔ وہ اندر ہی اندر ان کی اس گھٹیا سازش کو سمجھ چکا تھا۔ میں تو ایک معمولی باڈی گارڈ ہوں بیگم صاحبہ، میری کیا اوقات کہ میں سر افتخار کی بیٹی سے نکاح کروں؟ شہاب نے جان بوجھ کر معصومیت سے کہا۔ اوقات ہم بنا دیں گے تمہاری، تم بس ہاں کرو، ہم تمہیں منہ مانگی پیسے دیں گے، تم پریشے کڑے کو اپنے گاؤں یا جہاں بھی تم رہتے ہو وہاں لے جاؤ۔ اس مینشن اور اس کی جائیداد سے تمہارا یہ پریشے کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ بولو منظور ہے؟ نگہت خالہ نے بات کرتے ہوئے صاف کر دیا تھا۔ صاحب نے کچھ دیر سوچنے کا ڈرامہ کیا۔ اس کے لبوں کے کنارے پر ایک انتہائی باریک اور پرسرار سی مسکراہٹ رنگی۔ اگر آپ لوگوں کا یہی حکم ہے تو مجھے منظور ہے، میں پریشے بی بی سے نکاح کے لیے تیار۔ شہاب نے سر جھکا کر حامی بھر لی۔ شہاب باش، یہ ہوئی نا بات، کل رات ہی نکاح ہوگا، تم تیاری کر لو۔ سعیدہ پھپھو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ شہاب وہاں سے نکلا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ وہ ان بے وقوفوں کو ان کی ہی چال میں پھنسانے کی پوری تیاری کر چکا تھا۔
दूसरी तरफ जब सईदा पुप्पो ने परीक्षा को इसके निकाह के बारे में बताया, वो तो जैसे पागल हो गई। नहीं पुप्पो, मैं शहाब से निकाह नहीं करूंगी, सिर्फ एक बॉडीगार्ड है और इस वक्त तो मैं शादी करने का सोच भी नहीं सकती। आप मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। परीक्षा रोते हुए चिल्लाई और बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ भागी, मगर सईदा पुप्पो ने उसे पकड़कर वापस बिस्तर पर धक्का दिया। अपनी औकात में रहो लड़की, तुम्हारा बाप मर चुका है और अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अगर तूने उस बॉडीगार्ड से निकाह करने से इनकार किया तो मैं तुम्हें इसी वक्त धक्के देकर सड़क पर फेंक दूंगी और तेरा कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। पप्पू का लहजा इंतहाई खरांट और सफाक था। परीक्षा हैरत से उन्हें देखे जा रही थी। उसकी हिचकियां बंद हो गई थी। पप्पू, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं इस वक्त बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे अकेला छोड़ दे। वो इनके कदमों में गिरकर किरकिराई थी। बस बहुत हुआ ड्रामा, चुपचाप कल रात निकाह के लिए तैयार रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पप्पू उसे धमका कर कमरे से निकल गई थी। फिर दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। परीक्षा पूरी रात रोती रही। उसे शहाब पर बेहद गुस्सा आ रहा था और वो सोच रही थी कि शहाब ने चंद पैसों के लालच में उन जालिमों का साथ दिया और उसे धोखा दिया। उसकी नजर में लालची और घटिया इंसान न था। अगली रात मेंशन में इंतहाई सादगी और खामोशी से निकाह की रस्म अदा की गई। परीक्षा का दिल खून के आंसू रो रहा था। जब मौलवी साहब ने उसे इजाजत पूछी तो उसके होंठ सिल चुके थे। सईदा पुप्पो ने उसके कंधे को सख्ती से दबोचा। परीक्षा ने रोते हुए 3 बार कबूल है कह दिया और निकाह खत्म होते ही सईदा पुप्पो ने कुछ कागजात परीक्षा के सामने लापट के, चल अब जल्दी से इन पेपर्स पर अपने साइन कर दे। ये क्या है? परीक्षा ने सूजी हुई आंखों से कागजात को देखते हुए पूछा। तुझे इससे क्या, जो कहा है वो कर। ये जायदाद की मुंतकली के कागजात हैं। अब चूंकि तू इस घर से जा रही है तो ये सब हमारे नाम कर जा। फैजान ने आगे बढ़कर कलम उसके हाथ से थमाते हुए सख्ती से कहा। परीक्षा ने बेबसी से चारों जानिब देखा। शाह वहां खड़ा बड़ी खामोशी से ये सब दिख रहा था। उसे परीक्षा का कोई जवाब नहीं दिया। परीक्षा का दिल मुकम्मल तौर पर टूट गया। जब कोई रिश्ता ही नहीं बचा तो उसे इस जायदाद पर कोई गर्ज महसूस ही नहीं हो रही थी। उसे तो शायद शहाब भी खुद गर्ज ही नजर आ रहा था। उसे रोते हुए इन पेपर्स पर अपने साइन कर दिए और साइन होते ही पूरे मेंशन में जैसे जश्न का समा हो गया था। पप्पो, खाला, फैजान की खुशी दीदनी थी। उनके ख्याल में उन्होंने 500 करोड़ की जायदाद अपने नाम करवा ली थी। चल फैजान, मिठाई लेकर आ, आज तो हमारी लॉटरी लग गई। निगत खाला हंसते हुए बोली। प्रीशा ये सब बर्दाश्त न कर सकी और भाग कर अपने कमरे में चली गई। मामा, पापा, आप लोग क्यों चले गए? देखे ना आपकी परीक्षा के साथ क्या हो रहा है। वो उन्हें याद करती सिसकियों से रोने लगी। उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। उसके अपने खून ने उसे धोखा दिया था और वो इंसान जिस पर वो लाशौरी तौर पर भरोसा करने लगी थी वे पैसों के लिए बिक गया। अभी उसे रोते कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा जोर से खुला। सईदा पुप्पो हाथ में परीक्षा का पुराना सा बैग लिए अंदर दाखिल हुई और बैग उसके मुंह पर मारा। चलो उठो और ये रोना धोना बंद करो, अपना सामान बांधो और जाने की तैयारी करो। पुप्पो ने करख्त लहजे में हुक्म दिया। परीक्षा ने अपनी सूजी हुई आंखों से पुप्पो को देखा। पुप्पो, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? रात की इस है, मुझे थोड़ा सा तो वक्त देना। पुप्पो मुश्किल ये लफ्ज अदा कर पाई थी। ये अब तुम्हारा घर नहीं है। पुप्पो ने बेदर्दी से उसके हाथ झटक दिए। तुम्हारा निकाह हो गया है तुम्हारे उस बॉडीगार्ड से, तो वही तुम्हारा शौहर है और वही तुम्हारा ठिकाना। अब वो तुझे जहां मर्जी लेकर जाए, झोंपड़ी में रखे या सड़क पर, तेरा इस घर में कोई वास्ता नहीं। परीक्षा ने एक नजर पुप्पो के चेहरे पर उसकी बेहसी को देखा और अपने आंसू सख्ती से साफ किए, क्योंकि उनके सामने रोना उसे अपनी मजीद तस्लील करवाना लग रहा था। उसे खामोशी से अपना जरूरी सामान और चंद कपड़े उस बैग में डाले। उसकी नजरें कमरे के हर कोने हर चीज को देख रही थी जहां उसने अपने मामा पापा के साथ जिंदगी के सबसे हसीन खूबसूरत दिन गुजारे थे। वो रोते हुए घर की उन दरो दीवार को देखने लगी जो आज उसके लिए बेगाने हो चुके थे। उसने अपना बैग कंधे पर लटकाया और बोझल कदमों से कमरे से बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो लाउंज में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उसके कदमों से जान निकल गई। ड्राइंग रूम में मुतसिल इतने बड़े से लाउंज में सईदा पुप्पो, निगत खाला और फैजान सोफे पर यूं बुरा जमान थे जैसे कोई बहुत बड़ी जंग फतह कर ली हो। मेज पर मिठाइयों का डिब्बा खुला हुआ था और वह सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए हंस रहे थे।
परीक्षा को अपना बैग घसीटते हुए बाहर आता देखकर उन सबकी हंसी में एक जालिमाना तंज शामिल हो गया था। लो भाई, देखो तो, हमारी नई नवेली दुल्हन अपनी रुखसती के लिए तैयार होकर आ गई है। सईदा पप्पू ने मिठाई का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए तमस्कर अड़ाया। अरे दुल्हन तो है, मगर इसका दुल्हा कहाँ रह गया? अपने गरीब खाने में इस शहजादी के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहा होगा, कंगला कहीं का। निगहत खाला ने तंजिया कहकर लगाया। फैजान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और फरीशे के करीब आकर हकपारत से बोला, चल बीबी, जल्दी से रास्ता नाप, बस अब इस घर के आस पास भी नजर मत आना। फरीशे का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो इन लोगों की शक्लें भी नहीं देखना चाहती थी जिन्होंने दौलत की हवस में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने अपने आंसू रोके और खामोशी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसे लग रहा था कि जैसे उसके पाँव में मनो वजन भन दिया गया हो। घर के दरो दीवार उसे पुकार रहे थे। वो हर उस चीज को देख रही थी जो कल तक उसकी थी। वो रोते हुए दरवाजे के हैंडल तक पहुंची थी कि अचानक मेन डोर एक जोरदार आवाज के साथ खुला। परीक्षा डर कर 2 कदम पीछे हट गई। सामने दरवाजे पर शाहब खड़ा था, मगर ये वो शाहब नहीं था जो सर झुकाकर खड़ा रहता। उसका अंदाज, उसकी चालें, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ बदल चुका था। वो अपने मखसूस स्याह लिबास में पूरी आन बान और शान से अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की दमक से पूरे लाउंज में सनसनी से फैल गई। सब उसे यूं धड़ल्ले से इस कदर एतमाद से अंदर आता देख हैरत ज़दा रह गए। शाहब सीधा परीक्षा की तरफ कदम बढ़ाने लगा। परीक्षा उसे देखकर बिल्कुल साकित रह गई। शाहब ने उसके हाथ से एक बैग झटके से ले लिया। कहाँ जा रही हो जाने मन? शाहब की बारी रोबदार और दिलकश मुस्कुराहट में डूबी आवाज गूंजी तो परीक्षा का दिल धक सा रह गया। फटी फटी आंखों से शाहब को देख रही थी। ये क्या कर रहे हो तुम? परीक्षा के होंठ बामुश्किल हिले। ये बॉडीगार्ड अंदर कैसे घुसा है? सईदा पप्पू सोफे से उछल खड़ी हुई। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मेंशन के अंदर इस तरह घुसो? सामान उठाओ अपनी इस बीवी का और निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। साहब ने बैग को फर्श पर रखा और एक गहरी मुस्कुराहट के साथ उन सब की तरफ पलटा। हम कहीं नहीं जाएंगे, ये घर परिशे इफ्तिखार का है। साहब की आवाज में वो गर्ज थी कि लाउंज में सब लोग की बोलती बंद हो गई। ये क्या बकवास है? फैजान गुस्से से आगे बढ़ा। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ये घर अब हमारा है, उसने पेपर पर साइन कर दिए हैं, तो अपनी औकात भूल रहा है 2 टके के मुलाजिम। साहब ने फैजान को ऐसी कातिलाना नजरों से घूरा कि फैजान के कदम वहीं रुक गए। औकात तो तुम लोगों की मैं जल्द ही याद दिलाऊंगा तुम लोगों को। फिलहाल मेरी बीवी थक गई है और इसे आराम की जरूरत है। और ये सब क्या है शायद? तुम इसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? निगहत खाला हकलाते हुए बोली। उन्हें साहब का ये रूप देखकर अंदर ही अंदर खौफ महसूस हो रहा था। जिस तरह एक शौहर अपनी बीवी के दुश्मनों से बात करता है। साहब ने इंतहाई सर्द महरी से जवाब दिया और परीशे का हाथ मजबूती से थाम लिया। परीशे जो सब इस सूरत हाल से हक्का बक्का खड़ी थी, साहब के हाथ के लम्स से चौंकी। साहब ने उसका बैग दूसरे हाथ में उठाया और उसे खींचता हुआ वापस उसी कमरे की जानिब ले जाने लगा जहां से वो रोती हुई निकली थी। कि सब क्या है? तुम ये क्या कर रहे हो? सईदा पप्पा गुस्से से चीखी। मैं तुम्हारा बंदोबस्त करवाती हूँ। साहब ने मुड़कर उनकी तरफ देखा और बोला, पिक्चर अभी बाकी है पप्पो जान, फिलहाल आराम करें। साहब परीशे को लिए कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। कमरे में आते ही परीशे ने अपना हाथ झटक कर उसे छुड़ाया। उसका चेहरा गुस्से और उलझन से सुर्ख हो रहा था। ये सब क्या था? और तुम क्या कर रहे हो साहब? तुमने मुझे क्यों रोका? और तुमने मुझे जाने मन क्यों कहा? परीशे गुस्से और घबराहट से पीछे हटती हुई बोली। साहब ने बैग साइड पर रखा और अपने कोट के बटन खोलते आहिस्तगी से परीशे के बिल्कुल सामने आकर कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में शरारती सी चमक थी जिससे परीशे मजीद ज्यादा घबरा रही थी। मिसेस, अब तो करीब आने का परमिट मिल चुका है, और क्या कहूँ मैं? साहब ने दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और परीशे को दीवार के साथ लगा दिया। दूर रहो तुम मुझसे। तुम मेरे शौहर नहीं हुई, निकाह सिर्फ एक मजबूरी था। तुम मिले हुए हो उन सब के साथ। परीशे ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर साहब ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे इतनी जोर से अपने करीब खींचा कि परीशे के दोनों हाथ साहब के चूरे सीने पर जा टकराए और इन दोनों के दरमियान फासला ना होने के बराबर रह गया। साहब की गर्म सांसें परीशे के चेहरे को छू रही थी।
परीक्षा के दिल की धड़कन मचल रही थी। मजबूरी का निकाह था, मगर अब तो हो गया ना मेरी जान। अब आप मेरी बीवी है, शरई और कानूनी तौर पर। शहाब का लहजा इंतहाई मध्यम था। उसने अपना चेहरा परीक्षा के चेहरे के मजीद करीब किया तो परीक्षा ने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। ये ठीक नहीं है शहाब, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ो। हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना। परीक्षा की आवाज कांप रही थी। लेकिन हम यहाँ से चले जाएंगे तो कहाँ रहेंगे हम? तुम्हारा तो कोई घर नहीं, इतने गरीब हो तुम। साहब ने उसकी खुली जुल्फों को उसके चेहरे से पीछे करते हुए कहा, ये तो है, मैं तो एक गरीब बॉडीगार्ड हूँ। हम दोनों गरीब कहाँ जाकर रहेंगे? और तुम इतनी गरीब हो कि तुमने ये निकाह क्यों किया? परीक्षा ने रुहासी आवाज में कहा, गरीब हूँ जाने मन, लेकिन दिल का अमीर हूँ। साहब ने शरारत से आंख मारी और उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त जरा सी और सख्त की। और वैसे भी एक गरीब बॉडीगार्ड को इतनी खूबसूरत और गुस्से वाली बेगम मिल जाए, उसे और क्या मिलेगा भला? तुम बहुत बदतमीज हो साहब, तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने भी उन लोग के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। परीक्षा ने रोते हुए साहब के सीने पर मुक्के मारे। साहब के चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट आकर गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरी संजीदगी ने ले ली। उसने परीक्षा के दोनों हाथ नरमी से पकड़े और उसे अपने सीने से लगा लिया। परीक्षा जो पहले ही सदमे में थी, उसके मजबूत जहर में आकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया परीक्षा। मैंने आपके बाबा का मैं जितना वफादार था और हमेशा रहूंगा। साहब ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आपको लगता है कि आप उन दरिंदों को हवाले में कर दूंगा? मैं निकाह सिर्फ आपको उनकी साजिशों पर से बचाने के लिए किया है। वो आपको मारना चाहते थे या किसी ऐसे इंसान के पल्ले बांधना चाहते थे जो आपको कभी मिलने ही ना देता। मैं आपकी हिफाजत के लिए आपका बॉडीगार्ड बना था, मगर ना जाने कब आपसे मोहब्बत हो गई। मेरी आंखों में देखे। परीक्षा ने रोते हुए सर उठाया, लेकिन मैंने तो कागजात पर साइन कर दिया है ना। वो लोग अब इस घर के मालिक हैं। साहब मुस्कुराया। जो साहब की बीवी हो उसे कोई इस घर से नहीं कर सकता निकाल। आप मुझ पर भरोसा रखे परीक्षा, मैंने सब संभाल लिया है। आपकी इज्जत, आपकी हिफाजत और आपसे जुड़ी एक एक चीज अब मेरी जिम्मेदारी है। परीक्षा साहब की आंखों में सच्चाई दिख रही थी, जिसे जुटलाना नामुमकिन था। वो इंसान जिसे वो हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, आज वही उसकी वाहिद ढाल बनकर उसके सामने खड़ा था। रात काफी गुजर चुकी थी। साहब ने उसे मुकम्मल एतमाद में ले लिया था। परीक्षा के दिन में उसके लिए मौजूद नफरत, गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो रहा था और उसके गले लगी देर तक रोती रही और बहुत पुरसुकून वो हो गई थी। और फिर साहब ने उसे बिस्तर पर लिटाकर खुद सोफे पर जगह बना ली थी, मगर उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी। दूसरी तरफ लाउंज में एक नई साजिश तैयार हो रही थी। सईदा पुप्पो गुस्से से पागल हो रही थी। ये 2 टके का बॉडीगार्ड कुछ ज्यादा ही फास्ट निकला है। इससे इतनी जुर्रत के सामने खड़ा होकर हमें आंखें दिखाए। इससे परीक्षा को हमसे छीन लिया है। सईदा पुप्पो गुस्से से टहलते हुए बोल रही थी, पापा, मुझे तो लगता है कि उसने हमसे डबल गेम की है। उसने तो परीक्षा से निकाह भी किया और जायदाद में भी अपना हिस्सा मांगेगा। निगत खाला ने खदशा जाहिर किया, हिस्सा? अरे मैं तो उसकी बूटियां नोच लूंगी सुबह होते ही। मैं कल सुबह ही उसकी इस मनहूस बीवी को धक्के देकर इस घर से निकालूंगी। जायदाद के पेपर्स पर परीक्षा के साइन मौजूद हैं। कानून अब हमारे साथ है। कल सुबह मैं पुलिस को बुलाकर इसके बॉडीगार्ड को सीधा करवाऊंगी। पुप्पो ने दांत पीसते हुए फैसला सुनाया। रात कट के और सुबह का आगाज हुआ। हवेली में अभी सब सो रहे थे, सिवाय उन लालची रिश्तेदारों के। उनकी आंखों में दौलत की चमकनी नींद उड़ा दी थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही साहब और परीक्षा के कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। धड़ धड़ की आवाज से परीक्षा हड़बड़ा कर उठ बैठी। शराब फराश होकर अपने काले सूट में बिल्कुल तैयार खड़ा था। ये कौन है साहब? मुझे मुझे डर लग रहा है। अब ये क्या करने वाले हैं लोग? परीक्षा ने घबरा कर कंबल को सख्ती से पकड़ लिया। साहब ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और पुरसुकून अंदाज में बोला, आपकी पप्पो जान आई है अपनी जिल्लत का परवाना लेने के लिए। आप तैयार हैं इन भीड़ियों का शिकार देखने के लिए? साहब, वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने कागजात पर मुझसे साइन करवा लिए हैं। अब उनका मुकाबला मैं कैसे करेंगे? परीक्षा की आंखों में फिर से आंसू उमड़ आए। आप बस मेरे साथ डट कर खड़ी रहे। आज फैसला होगा, इस घर में कौन रहेगा और कौन सड़क पर जाएगा। साहब ने अपना कोट दुरुस्त किया और दरवाजे की तरफ बढ़ा।
दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज पर बाहर खड़े लोगों के चेहरों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई थी। मगर जैसे ही शाह ने एक झटके से दरवाजा खोला तो उनकी मुस्कुराहट जैसे उनके होंठों पर जम गई। साहब अपनी मखसूस स्याह लिबास में एक हाथ जेब में डाले और चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट सजाए खड़ा था। उसकी आंखों में जरा भी खौफ नहीं था, जिसकी उम्मीद साइदा फूफा और निगत खाला लगा कर आई थी। परीशा जो कुछ देर पहले तक घबराहट का शिकार थी, साहब की मजबूत पुश्त के पीछे खड़ी खुद को बेहद मजबूत महसूस कर रही थी। उसके दिल में बुरी तरह का डर निकल चुका था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि जब तक ये शख्स उसके साथ है, दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चलो लिख लो दोनों यहाँ से, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो यहाँ डेरा जमा लिया। सईदा पुप्पा ने अपनी कमर पर हाथ रखते इंतहाई रौनियत भरे लहजे में कहा था और दोनों के रास्ते में से हटने का उन्हें इशारा किया। उनके पीछे खड़े फैजान और निगत खाला और नाम नहाद चाचा और उनकी बेटी, जो कि जायदाद मिलने की खुशी में भागे दौड़े चले आए थे, वो वापस वही तमस्खर उड़ाते उनकी बेबसी का तमाशा देखने के लिए बेताब थे। मगर उससे पहले कि शाह को जवाब देता, परीक्षा से निकलकर उसके बराबर में आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू की जगह अब एक नया एतमाद और बेखौफी थी। मेरे तो बाप का ही घर है ना, अलबत्ता आपके बाप का घर नहीं है ये। परीक्षा ने पुप्पो की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई नडर और दो टूक अंदाज में जवाब दिया। परीक्षा का यह खुल्ला खुल्ला और बेखौफ रूप देखकर सब हक्का बक्का रह गए। वो परीक्षा जो कल तक उनके सामने सर उठाकर बात नहीं कर पा रही थी और सिस्कियों में अपनी जान घुला रही थी, आज उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकार रही थी। सईदा पुप्पो को अचानक कुछ गलत होने का एहसास जागा, क्योंकि उन्होंने देखा कि शाहब के लबों पर बड़ी जुमाइनी मुस्कुराहट खिल रही थी। वो दोनों पूरे वक़ार के साथ कमरे से बाहर आए और चलते हुए सीधा मेंशन के उस हॉलनुमा लाउंज में आगे, जहाँ कुछ देर पहले उन लालची रिश्तेदारों की फतह का जश्न मनाया जा रहा था। पुप्पो, खाला, चाचा और उनकी बेटी फैजान भी बौखलाए हुए थे और उनके पीछे हॉल में आकर खड़े हो गए। ये क्या बदतमीजी है लड़की, तुम किस जुबान में मुझसे बात कर रही हो? तुम भूल गई हो कि तुमने कल रात इस जायदाद से दस्तबरदारी के कागजात पर दस्तखत किए हैं। ये जायदाद अब तेरी नहीं है, इस घर से निकलो दोनों। सईदा पुप्पो ने गुस्से से चिल्लाते हुए कागजात निकालकर हवा में लहराए, जिन पर उन्होंने रात को जबरदस्ती परीक्षा के साइन करवाए थे। कागजात तो आपके पास है ना बेगम साहिबा, जरा इन्हें खोलकर तो पढ़ लें कि इन पर लिखा क्या है। अचानक मेन डोर की धनी पहचानी आवाज उभरी। सबने पलट कर देखा तो जमील साहब अपने हाथ में एक ब्रीफकेस पकड़े अंदर दाखिल हो रहे थे। उनके पीछे हवेली के पुराने वफादार मुलाजिम बाबा रहमते भी खड़े थे, जिनके चेहरे पर आज कई दिनों बाद मुस्कुराहट थी। वकील साहब, यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं और इन कागजात को पढ़ने की क्या जरूरत है? परीक्षा ने इस हवेली और तमाम जायदाद को हमारे नाम करने के पेपर्स पर साइन किए हैं और ये बात आप भी जानते हैं। फैजान ने आगे बढ़कर अकड़ते हुए कहा। साहब ने मुस्कुराते लाउंज के सबसे बड़े और शाहाना सोफे की तरफ कदम बढ़ाया और सोफे पर बैठकर अपनी एक टांग दूसरी टांग पर जमाई और सोफे की पुष्ट से टीक लगा दी। उसका ये शाहाना और पुरएतमाद अंदाज देखकर निगत खाला और सईदा पुप्पो के दिलों में जैसे होड़ उठने लगे। साहब ने वकील साहब को इशारा किया तो वकील साहब ने सईदा पुप्पो के हाथ से वो कागजात देकर सबके सामने खोल दिए। ये जायदाद की मुंतकली के कागजात नहीं है सईदा बेगम, ये तो एक आम सा हलफनामा है जिस पर लिखा है कि परीशे बीबी अपनी मर्जी से साहब साहब के साथ निकाह कर रही हैं और इन पर कोई जबरदस्ती दबाव नहीं है। घर आज भी परीशे के नाम पर है और हमेशा रहेगा। वकील साहब की बात पर लाउंज में किसी बम की तरह घिरी थी। ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, मैंने खुद इन पेपर्स पर जायदाद की तफसील लिखी देखी थी। साहिदा पुप्पो पागलों की तरह वकील के हाथ से वो कागजात छीनकर अपने पढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगी। आपने बिल्कुल ठीक देखा था पुप्पो जान, मगर आप शायद ये भूल गई कि इस घर में परीक्षा का एक बॉडीगार्ड भी रहता है, जिसका काम सिर्फ गोली खाना नहीं है, बल्कि आप जैसे सांपों का फन कुचलना भी है। साहब ने अपनी टांग पर टांग जमाते बड़े मजबूत लहजे में कहा, मैंने वकील साहब के साथ मिलकर पहले ही सब पता कर लिया था और निकाह की वक्त वो असली पेपर चेंज भी करवा दिए थे। जो पेपर आपने परीक्षा के सामने रखे थे वो सिर्फ एक हलफनामा था, जिसे साइन करके परीक्षा ने खुद को हमेशा के लिए मेरी शरई और कानूनी जिम्मेदारी मुझे बना दिया था। तुमने हमारे साथ धोखा किया। एक 2 टके के तनख्वाहदार मुलाजिम की इतनी जुर्रत,
کیا وہ ہمارے ساتھ چال چلے؟ نگہت خالہ غصے اور صدمے سے اپنا سینہ پیٹتے چلائے۔ فیضان نے غصے سے آگے بڑھ کر شہاب پر اٹھانے کی کوشش کی، مگر شہاب بجلی کسی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے فیضان کا ہاتھ اتنی زور سے مڑوڑ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا کہ فیضان دور جا کر اوندے منہ فرش میں گر۔ اپنی حد میں رہو فیضان، ورنہ تمہارے وہ ہاتھ توڑ دوں گا جن سے تم نے اس گھر کی چیزوں کو اپنا سمجھ کر چھونے کی کوشش کی تھی۔ شہاب کی دھاڑ سے پورا ہال گونج اٹھا، اور اب باری ہے تم سب کی اس گھر سے نکلنے کی۔ وکیل صاحب، ان سب کو اس گھر سے بے دخل کرنے کا قانونی نوٹ دیجیے، اور بابا رحمتے ان کے کمروں میں ان کا سامان اٹھا کر باہر سڑک پر پھینکے۔ آج کے بعد اس گھر میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہونا چاہیے۔ شہاب کا ایک ایک لفظ کسی بادشاہ کے حکم کی طرح گونج رہا تھا، جس کی تعمیل کے لیے وہاں موجود ہر ملازم تیار کھڑا تھا۔ سعیدہ پھپھو کو جب اپنی ہار کا مکمل یقین ہو گیا تو ان کا چہرہ غصے اور نفرت سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب ان کا سارا کھیل الٹا پڑ چکا ہے، مگر ان کی زہریلی زبان ابھی بھی خاموش ہونے کو تیار نہیں تھی۔ روٹ ٹکے کا باڈی گارڈ اور ساری کھیل الٹا گیا۔ پھپھو نے کٹیلی اور زہر بری نگاہوں سے شہاب اور پریشے کو گھورتے ہوئے کہا، بچ کے رہنا پریشے، اب ہمیں تمہارے باپ باپ کی جائیداد کا لالچ تھا تو لالچی یہ باڈی گارڈ بھی ہے، آج اس نے اپنی چلاکی سے ساری دولت ہتھیا لی ہے اور ہمیں اس گھر سے نکال دیا۔ دیکھ لینا کل کو یہ تمہاری جائیداد پر قبضہ کر کے تمہیں بھی اسی طرح دھکے دے کر گھر سے نکال باہر کرے گا۔ پھپھو کی زہریلی بات پر پریشے کا دل ایک دم سے دھڑکا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے لگا جیسے پھپھو نے اس کے دل میں چھپے اس جھوٹے سے خوف کو زبان دے دی ہے۔ وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے شہاب کی طرف دیکھنے لگی کہ کیا واقعی شہاب نے یہ سب اس دولت کے لیے کیا ہے۔ ایک منٹ سعیدہ بیگم، جمیل صاحب نے پھپھو کو دروازے کی طرف جاتے روکا اور سنجیدگی سے بولے، آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جن کی بات آپ کر رہی ہیں اور جنہیں آپ 2 کا باڈی گارڈ سمجھ رہی ہیں، ان کی اپنی 500 کروڑ کی پراپرٹی ہے۔ شہاب صاحب شہر کے مشہور بزنس تائکون مسٹر ملک سکندر کے اکلوتے بیٹے ہیں اور ان کا اپنا بزنس امپائر ہے، آپ لوگوں کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑا۔ وکیل کی اس بات پر جیسے پورے ہال میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور وہ بے یقینی سے شہاب کو دیکھنے لگے جو اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے مسکرا رہا تھا۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پریشا کی اپنی حالت بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ وہ حیرت اور شوق کی ملی جلی کیفیت میں کبھی وکیل کو دیکھ رہی تھی اور کبھی شہاب کو۔ چلے اب اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا کر تم سب فراڈ کے کیس میں اندر کرواؤں، چپ چاپ اپنا راستہ راپو اور مڑ کر کبھی اس مینشن کی طرف مت دیکھنا۔ صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں باہر نکلنے کا راستہ دکھایا۔ کچھ ہی دیر بعد تھوڑے سے ساز و سامان کے بعد وہ سب ذلت، رسوائی اور صدمے کے بوجھ تلے دبے سر جھکائے دروازے سے باہر نکل گئے۔ بابا رحمتے نے خوشی خوشی جا کر مین ڈور اندر سے لاک کر دیا اور وکیل صاحب بھی شہاب سے ہاتھ ملا کر اور پریشے کی دعاؤں دے کر وہاں سے وہ رخصت ہو گئے تھے۔ اب اس بڑے اور پرسکون لاؤنج میں صرف پریشے اور شہاب ہی موجود تھے۔ پریشے کے ذہن میں ابھی تک وکیل کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی شہاب کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے۔ تم تو امیر ہو، تم ارب پتی ہو؟ پریشے نے معصومیت اور بے یقینی سے پوچھا۔ شہاب کے لبوں پر وہی پرانی شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر پریشے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ جی مسز شہاب، میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہی تھی۔ تو پھر تم باڈی گارڈ کیوں بنے؟ تم میرے گھر میں ایک ملازم بن کر کیوں رہے؟ پریشے نے الجھن سے پوچھا۔ شہاب نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے دھیمے لہجے میں بولا، کیونکہ آپ کے بابا کی ریکویسٹ تھی کہ میں ان کے غصے والی اور ضدی بیٹی کو اپنے نام کر دوں۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے دشمن ان کی جان کے پیچھے پڑے ہیں اور وہ آپ کو کسی محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتے تھے۔ میرے بابا اور آپ کے بابا بہت گہرے دوست تھے، انہوں نے میرا انتخاب کیا۔ شہاب نے رک کر ایک لمبی سانس لی اور مسکراتے ہوئے بولے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تو ایسے میری بات ماننی نہیں تھی اور نہ ہی سیدھے طریقے سے مجھ سے نکاح کرنا تھا۔ تو آپ کا دل جیتنے کے لیے، آپ کے دشمنوں سے بچانے کے لیے آپ کا باڈی گارڈ، کیونکہ بندہ ناچیز اب دل ہار بیٹھا تھا اور آپ کی جان کو خطرہ تھا۔ پریشے کا دل شہاب کی اس محبت اور قربانی پر موم کی طرح پگھل گیا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری اور محبت کے آنسو چھلک پڑے۔ خیر خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے۔ شہاب نے اچانک شرارت سے اپنی بویں اچکاتے ہوئے کہا، کیا
تمہارے ہوتے ہوئے مجھے خطرہ ہو سکتا ہے کیا؟ پریشا نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنے دونوں بازو شہاب کے گلے میں مائل کر دیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس کے جذبات کو مکمل طور پر جگا دیا۔ شہاب نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے قریب جوڑ لیا اور اس کے کان کے قریب جھک کر نشیلی آواز میں سرگوشی کی۔ اب تو آپ کو مجھ سے خطرہ ہوگا نا؟ پریشا کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دے دی، صاحب نے اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا اور لاؤنج سے نکل کر کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ پریشا نے گھبرا کر اور ہنستے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گلے میں سختی سے ڈال دیے۔ صاحب مجھے نیچے اتارو، مجھے بھوک لگی ہے، پریشا نے بچوں کی طرح منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ صاحب نے چلتے چلتے اچانک قدم روکے۔ اس کی گہری اور شرارتی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور پریشا کی طرف دیکھ کر انتہائی معنی خیز انداز میں آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا، مجھے بھی۔ پریشا کا چہرہ شرم سے مکمل سرخ ہو گیا اور اس نے اپنا چہرہ شہاب کے سینے میں چھپا لیا۔ شہاب کے کھنکتے ہوئے کہکے کے ساتھ مینشن کی وہ اداس فضائیں ایک بار پھر سے خوشیوں اور محبت کے رنگوں سے مہک اٹھی تھی اور زندگی کے اس حسین آغاز پر محبت ان کی سانسوں کے لے پر اپنا دلکش اور سدا بہار عشق رقصم کر رہی تھی۔